Happy Independence Day, everyone. Respect your independence. Respect women. Respect everyone around you. Spread love, peace, and happiness. सफर शुरू है तो संग है रास्ते, कदम कदम पे जंग सी ये जिंदगी मिले। हो मुश्किलों के दौर में सब कुछ फरेबी, सफर पे कोई तेरा ना हो तू खुद को थाम ले। जो होगा देखेंगे, हाँ यहाँ से लेकर हम उम्मीदें जोड़ेंगे, ना रुकेंगे ना थमेंगे, चाइना जो करेंगे हम जहाँ में रंग फिर नया बनाएंगे। और क्या फिर आपने एक बहुत बड़ा काम किया है कैंसर पेशेंट्स के लिए। आपने अपना एक फाउंडेशन शुरू किया है, यू वी कैन, जी YOUWECAN। या ये नाम कहाँ से सोचा आपने? वहीं पर जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, मुझे था कि मैं लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब पढ़ी, उन्होंने जो लिवस्ट्रॉन्ग शुरू किया फंड, मैं चाहता था कि उसी की बेसिस पे जाके मैं कुछ करूं, बिकॉज आई फेल्ट द पेन। और मैं सोच रहा था कि इंडिया में कितने लोग होंगे जो इस बीमारी से गुजर रहे होंगे, सो आई थॉट मैं जाके उनके लिए कुछ करूं। So I think we can was के we together can fight this. That was the whole point. पिछले 2 साल में हमने पूरे इंडिया में 1,25,000 डिटेक्शंस किए हैं UV-CAN के द्वारा। अच्छा। जस्ट ये कोशिश करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोग अपने आगे टेस्ट कराएं, उनकी जान बचे। So I think that's the initiative UV-CAN is taking. The biggest challenge is that the underprivileged don't have the money to get treated. We are committed to save as many lives as we can. Peak of my career, won the World Cup, was man of the series. India won after 28 years. It was like a dream come true, and then it was like falling from the sky. But the worst part was to come to terms with it. I was an athlete and someone who is training and eats well, thinks that he's untouchable, nothing can go wrong with him. It was hard. Emotionally, I was a bit down. It's a battle, a self-battle where you're trying to overcome. But then after going through cancer, I felt the pain. I thought that I want to help people get through this. Almost 11 lakh people every year diagnosed with cancer. The biggest challenge is that the underprivileged don't have the money to get treated. So I just thought that underprivileged is a section where I can really help people to get treated. UV-CAN Foundation helps people in 4 ways: spreading cancer awareness and screening. We provide financial assistance to patients who are below 16 years of age. Through the UV-CAN scholarship, we provide financial assistance to cancer survivor children from marginalized backgrounds. They are supported on a year-on-year basis till the time they complete their education. When children go through cancer, parents lose a lot of their funds treating their children, and sometimes they don't have funds to give them education. They say that the child has had cancer, I don't think he has any future, and I totally disagree with that, because I'm a prime example of coming out of cancer and being at my best. And that was the whole purpose of giving scholarships to young children who come out of cancer, and I want them to have a better future. We need your help so that we can support cancer treatment of many children and save precious lives. I really hope that you will support these children like you have supported me. Together we can, and we will fight cancer. 2010 में मैं उठा, एक दिन रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी आई बहुत जोर से। उठा, बाथरूम गया, खांसी की, थोड़ा खून निकला, तो मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन अपने फिजियो को मिला, मैंने उसको बोला कि मुझे सांस की दिक्कत हो रही है, मैच में मुझे सांस की दिक्कत हो रही थी, मैं रन भाग रहा था, सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि यार मुझे सांस नहीं आ रही है, लेफ्ट साइड से मुझे दिक्कत हो रही है। तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि आप चेक करा लो। मैंने कहा ठीक है, ये टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो फिर हम इंडिया जाके कुछ करते हैं, चेक वेक करते हैं। इंडिया गए, वर्ल्ड कप का कैंप शुरू हो गया, तो मैंने कहा मैं चेक वेक नहीं कराऊंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कुछ तो गड़बड़ है, रहने देते हैं, अभी थोड़ा गेम पे फोकस करते हैं।
वर्ल्ड कप खेले, इंडिया में वर्ल्ड कप था, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। आप सब लोग की उम्मीदें वर जो तेरे लिए थी हमारे ऊपर। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान। आप लोगों की उम्मीदें थी कि भाई 28 साल हो गए, कभी तो वर्ल्ड कप लेके आओगे, इंडिया में है, जीतना पड़ेगा। तो प्रेशर कुछ ऐसा था कि इंडिया में ही जीतना है। और आई रिमेंबर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई। मुझे कई मैचों में नींद नहीं आती थी। बहुत से इश्यूज होने लगे, बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। खेलते गए और वर्ल्ड कप में हमने अच्छा किया, हम वर्ल्ड कप जीते। और तेरी मिट्टी में मिल जावा। हम लोग 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीते, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये ऐसा एक मोमेंट था हमारी, जब से हम छोटे बच्चे थे, एक स्पोर्ट खेलना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इज अ वेरी प्राउड मोमेंट। फख्र लगता है उस चीज से। मैजिक का मतलब है मेहनत और लगन, सैक्रिफाइस, डिटर्मिनेशन। हार मत मारना, जिस दिन दूसरा यही चाहता है कि तुम हार मानो। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम हार मानो, लेकिन जब दुश्मन को मालूम पड़ेगा ना कि वो तुम्हें जितनी बार भी गिराएगा और तुम उतनी बार उठोगे, मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, तो दुश्मन भी कतराएगा। वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। चक दे फटे नप दे किली, सुबह जलंधर शाम में दिल्ली। तो फिर वर्ल्ड कप जीते, युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज, 4 मैन ऑफ द मैच, 1 ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज, सडनली फ्रॉम लो टू हाई, यहां से यहां। तेरी मिट्टी में I was on top of my world. I was 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। मेरा स्कैन क्या करना है, खून नहीं आ रहा है मुझे, क्या हो गया, खेलना इंडिया में जाके। अगर जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते खून की उल्टियों के साथ? क्यों भाई, अगर हमारे जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेलते खून की उल्टियों के साथ? वो हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं, हम तो उनके लिए बॉल ही खा रहे हैं। बॉल लगेगी छाती पे, नील पड़ेगा, सर पे लगेगी, ठीक हो जाएगा, पर गोली लगेगी तो कोई गारंटी नहीं है। सो आवर सोल्जर्स आर रियल लाइफ हीरोज, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो मुझे भी लगा मैं भी एक सोल्जर हूं इंडिया का, थोड़ा कम काम कर रहा हूं बट कुछ कर रहा हूं। लोगों ने बहुत दुआएं की मेरे लिए, आप लोगों ने बहुत दुआएं की टू बाउंस बैक। आई फील के दवा से बड़ी दुआ होती है। हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं गरीबों को खाना खिलाओ और वो तुम्हें दुआ दे, और दुआ से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप लोग कभी कहीं जा रहे होंगे, आपको कोई गरीब मिलेगा, उसे कभी खाना खिलाना और उसे पूछना कि उसको कैसा फील हो रहा है, तो वो जब अपनी फीलिंग बताएगा ना तुम्हें, उससे अच्छी फीलिंग तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ट्राई करके देखना। एनीवेज, उसके बाद वापस आया। आई थिंक उस दौरान मेरे मदर मेरे साथ थे और उन्होंने दूसरी बार मुझे जन्म दिया। तो दैट मोमेंट आई ऑलवेज थॉट कि मैं वापस आके इंडिया के लिए जरूर खेलूंगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आप 2 साल तक, अभी 2-3 साल तक आप यू हैव टू रिकवर, मतलब यू माइट रिकवर इन 6 months 1 year, बट आपको 2-3 साल अभी लगेंगे। मैंने कहा ओए डॉक्टर को क्या पता, मतलब मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स नो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डूइंग द राइट जॉब। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल भाई लोगों, की आरज़ू। अपनी जिंदगी की लकीर खुद लिखो, अपनी लाइन, हाथ की लाइन किसी और के हाथ में मत दो। इसका मतलब अपना रास्ता खुद ढूंढो। काम शुरू किया चैरिटी का। मैं चाहता था कि कैंसर से मैं गुजरा हूं, मैं वापस जाके अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो उन दौरान मुझे टाइम मिला कि मैं लोगों की मदद करूं जिन लोगों को कैंसर हुआ है। एक तरीका था, हम अपने बारे में सोचते हैं,
अपने करियर के बारे में, बट वो एक टाइम था जब मैं दूसरों के बारे में सोच सकता था कि मेरे अलावा इतने लोग जिनको कैंसर होता है उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चैरिटी खोली हमने, बहुत से यूवी कैन के नाम से चैरिटी खोली। यूवी कैन का मतलब हमारे दिमाग में नाम है यूवी कैन, क्योंकि यूवी एक जो मेरा नाम है, यू वी कैन मतलब टुगेदर, हम इकट्ठे मिलके वी कैन फाइट कैंसर। तो इस सहज से वो नाम आया। तो बहुत सी डिटेक्शंस की, बहुत से लोग गरीब लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत लोगों से बात की तो हम अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम काफ़ी लोगों का इलाज कर पाए। तो हमने 25 बच्चे जिनको कैंसर हुआ था और माँ बाप ने उनके इलाज के लिए सब पैसा खर्च दिया था, तो हमने वो 25 बच्चों के लिए उनकी स्पॉन्सरशिप देनी शुरू की स्कूल की। तो हमारा ये छोटा प्लान था। आज की डेट में हमारे पास 50 बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन हम संभालते हैं, जो कैंसर से वापस आए। और पिछले महीने हमने 6 बच्चों का इलाज कराया यूवी कैन फाउंडेशन से। तो आई थिंक लाइफ में मुझे एक मोटिव मिला काम करने के लिए कि मैं अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। डोमेस्टिक में काफ़ी रन बनाए उस साल। आई थिंक आप ही लोग जिस दिन एक मकाम पे पहुंचेंगे और पहुंचे हुए हैं, आप भी ज़रूर किसी की मदद करिए, अच्छा लगेगा। इतनी सी है दिल की वनडे क्रिकेट में 3 साल बाद वापसी हुई, जबकि सबने बोल दिया था कि ये कभी वापसी कर नहीं पाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 मैच में कुछ 800 रन बनाए, उसके बाद वापसी हुई। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर खत्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी क्योंकि कभी हार नहीं मानी। है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, अपनी लकीर खुद लिखो। में लहरावा, इतनी सी समझ आई मेरी बात? की आरज़ू। लास्ट ईयर मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन नहीं बनाया, मेरा साल बहुत खराब गया और मैं आईपीएल से भी ड्रॉप हो गया। और pretty much लोगों ने अब कांटा मार दिया है कि इसका करियर खत्म। तो 99.9% ऑड्स मेरे अगेंस्ट है, मतलब तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्योंकि जब ये खांसता था और वोमिटिंग करता था, हमें ये लगता था कि शायद मे भी कफ प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमने ये नहीं उम्मीद की थी कि इसको कैंसर हो सकता है। तो जब न्यूज़ हमें मिली तो हमको सबको शॉक लगा और हम लोग यही सोच रहे थे कि युवराज सिंह इतनी देर क्यों कर दी, मतलब अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो पहले क्यों नहीं, इतनी जल्दी क्यों नहीं ट्रीटमेंट लिया, यहाँ तक नौबत आती नहीं। तो सबके दिमाग में यही सवाल था। जब पूछा गया उससे तो वो भी जवाब हमें मिला कि नहीं, मैं भी सोचा था ऐसा कुछ नहीं है। तो जब स्कैन्स कराए तभी पता चला कि मुझे कैंसर है। तो इमीडिएटली उसके बाद ये अमेरिका गया अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिकवरी करेगा। तो सब कुछ इतना जल्दी हुआ उस दौरान कि अगर अभी मैं पीछे देखता हूं तो मेरे को भी याद आता है कि वर्ल्ड कप का टाइम है, उसके बाद ही वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग। ये जब मेरे को बोलता था कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं उसको हमेशा बोलता था मैं अभी फिजियो से ना 2 नींद की गोली मंगाता हूं फिर खा के सो जाना। तो हम ऐसे ही मजाक करते रहते थे, पर अभी जब देखते हैं तो याद आता है कि हाँ, ही वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग। याद है कि दिल्ली में जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं वो सब चेन्नई पहुंचे हुए थे। तो मैं सबसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, आप सब लोग क्या कर रहे? तो हम लोग मैच देखने आए हैं युवराज सिंह का। मैंने कहा युवराज सिंह ये वही युवराज सिंह है जो पहले युवराज सिंह था। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू कि इतनी जल्दी उन्होंने कम बैक की। क्या आप जानते हैं कैंसर सांस में भी ज्यादा टाइप के होते हैं?
कैंसर किसी को भी कभी भी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, मगर 60% से ज्यादा कैंसर टाइम पर जांच करा के हराए जा सकते हैं। जांच समय से हो जाए तो लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। अपने और अपने परिवार की समय से जांच कराएं, कैंसर को हराएं। To support, log on to uwecan.com or SMS Y space amount to 56060. याद रखें, you we can together fight cancer. कितनी हसी जिंदगी है ये, होठों पे जैसे कहानी है, सदा यहाँ किसका ठिकाना है, उम्र की रवानी में जाना है। बहारों में बरसों रंग है बिखेरा, रेत का सहरा एक पल का ढेरा, एक दिन बिखरना यहाँ। हमारे साथ है युवराज सिंह, जो अपने आप में बहुत ही खास इंसान है। युवराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम आपको जिस तरह से जानते हैं, यही सुना है हमेशा कि एक छोटा लड़का चंडीगढ़ का जो स्केटिंग किया करता था, चैंपियन स्केटर था, फिर क्रिकेटर भी चैंपियन बना, बहुत सारी पार्टीज़ करता था। अब वो बिल्कुल बदल गया है। अब युवराज कैसा इंसान है? देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आई थिंक हर आदमी को बच्चे से जवान से आदमी बनने में टाइम लगता है। तो आई थिंक बहुत से इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हो चुके हैं जिन्हें मुझे बदला है, और जो मेरी दूसरी ज़िंदगी शुरू हुई है, और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और एक आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप उस टाइम नहीं खेले होते तो शायद बेहतर रहता, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि डॉक्टर्स ने आपको ये भी कहा कि अच्छा हुआ तुम उस टाइम खेल रहे थे, तो दोनों तरह से अच्छा रहा। बॉडी को भी वो एक स्टैमिना मिला और इंडिया के लिए भी अच्छा हुआ। आई थिंक एवरी डॉक्टर हैज़ देयर ओन ओपिनियन। कोई डॉक्टर ने बोला कि अच्छा हुआ मैं खेला, कि मेरा हार्ट पंप होता रहा। कईयों ने बोला कि इट वाज़न्ट गुड, बट ऊपर वाले की दुआ से मुझे उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ, और हम वर्ल्ड कप जीते, मैं सीरीज़ का अवार्ड भी मिला, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। लेकिन इट वॉज डिसअपॉइंटिंग के मैं पीक करने के बाद, इतना अच्छा खेलने के बाद, आई हैड टू गो थ्रू दिस। अच्छा, अब हम ड्यूरिंग कैंसर वाली स्टेज पे आते हैं, जब आप एक्चुअली नज़र मिलाकर बिल्कुल फाइट कर रहे थे कैंसर से। उस टाइम बहुत से दिन ऐसे थे जो बहुत मुश्किल थे, पैलेट में टेस्ट नहीं आता है, वॉमिटिंग होती है, डिप्रेशन होता है। वो दौर कैसा था? मुश्किल था, आसान नहीं है किसी भी आदमी के लिए उससे गुजरना, लेकिन होप था एक कि मैं ठीक होऊंगा। मालूम था कि ये जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं, ये आपकी बॉडी में अच्छे सेल्स को भी मारते हैं, ख़राब सेल्स को भी मारते हैं, लेकिन इवेंचुअली डॉक्टर्स ने बोला था कि इवेंचुअली ये तुम्हें ठीक करेंगे, और उसी चीज़ का होप था। फैमिली का सपोर्ट था, मेरे खास दोस्त उधर थे, मेरे मदर जिन्होंने दिन रात मेरा साथ दिया वो वहाँ पर थे, और उन्हीं की सपोर्ट से, उन्हीं के प्यार से मैं वहाँ उभर के आया, और वही रीज़न है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। आपकी मम्मा कभी आपके सामने रोई नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने आपको ये दिखाया हो कि वो वीक हैं, हमेशा आपको ही सपोर्ट किया, आपको रोने देती थी, आपको परेशान। जी, माई मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक मैं अपनी माँ की गोदी में बहुत रोया हूँ इस दौरान। जब डायग्नोसिस आए तब काफ़ी रोई मेरी माँ, तो आई थिंक उसके बाद उन्होंने ठाना था कि मुझे अपने बेटे को ठीक करना ही है। तो आई थिंक आई बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर एंड अ लवली मदर। सो वही रीज़न है आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। ऑब्वियसली मुझे इंडिया से बहुत विशेष आई, बहुत लोगों का प्यार मिला, दवा से बड़ी दुआ होती है, ये सब ये कहते हैं, लेकिन जो फैमिली की सपोर्ट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। करके दिखाने का खुद से किया था जो दुनिया ने उसके संघर्ष को माना है, जिसने कुछ बड़ा करने का ठाना है। समाज को कैंसर मुक्त बनाने में PGICH के योगदान को देखकर प्रेरित हुए भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की संस्था UWeCan ने साथ देने का फैसला किया है एवं 1.8 करोड़ की लागत से PGICH नोएडा में एक नई बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट विकसित करने का भी आश्वासन दिया है। तो आइए हम सब मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और समाज को कैंसर मुक्त बनाते हैं।
कैसी है अनहोनी हर आंख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा। देखो आ गया है टाइम कुछ करके दिखाने का, खुद से किया था जो वादा वो निभाने का, माना जब तू गिरा तो कुछ लोग हंसे, लेकिन अब टाइम उनके मुंह बंद कराने का, देना है जवाब हर एक ताने का, अपना फ्यूचर अपने आप बनाने का, हाथों में तेरे जीत की लकीर नहीं थी, अब आया टाइम उस लकीर को बनाने का, चल उठ किसी की करे तो वेट, पहले ही हो चुका है तो कितना लेट, कर दे खत्म अब तू ये सहमत, कर बस मेहनत बाकी उसकी रहमत, काम करेगा तो साथ देगी कुदरत, सयान की बातों पे गौर कर, तुझे लगता है तूने जो मेहनत करी है वो काफी है, चल और कर। Get up and do it again, yeah. Get up and do it again, yeah. Get up and do it again, चल उठ and do it again, get up and do it again, yeah. Get up। मैंने कहा डॉक्टर साहब सीरियसली बताइए प्रॉब्लम क्या है, तो डॉक्टर साहब के लंग के ऊपर एक शायद कोई ट्यूमर है। मैं डॉक्टर साहब मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है, मैं दिन में 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा पीता हूँ, मैं अच्छा सोता हूँ, कोई ट्यूमर नहीं हो सकता, समझे आप। ऐसे मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, मैं खेलने आ रहा हूँ, टूर पे चला गया खेलने, एक्चुअली 1 साल लगा एक्सेप्ट करने में कि मेरे को कैंसर है। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, जितना मर्जी बीमार हो जाऊँ व्हील चेयर पर नहीं बैठूंगा, लेकिन इवेंचुअली तीसरे साइकिल के बाद व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। लेकिन जब मैं आई वाज गोइंग थ्रू दैट मोमेंट आई ऑलवेज थॉट कि मैं वापस आके इंडिया के लिए ज़रूर खेलूंगा। डॉक्टर्स ने बोला अगर बच गए तो 2 साल के बाद, मे बी 2 या 3 साल के बाद यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अगेन। मैंने कहा ओए डॉक्टर को क्या पता है। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। भाई लोगों, अपनी जिंदगी की लकीर खुद लिखो। So today, on the occasion of International Childhood Cancer Day, there was a drawing and painting competition in our ward for the children who were admitted there and who had come to the OPD today for a visit. And it was especially nice to see the smiles on their faces, to see how they were expressing themselves through colors. We have collaborated with the Yuvraj Singh Foundation recently to support the kids' cancer treatment, and it's very pleasant to be here. They have so much talent, but they are suffering with this disease, but that's what we can contribute to the society by providing them the means to support their treatment. They are the future for our society. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल। तो मेरा नाम पवन है, मैं कुछ कैंसर के ऊपर सुनाना चाहता हूँ बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। ऊपर वाले पे नजर है सबकी, सबको ठीक होना है, बहुत रो लिया है अब हमको नहीं रोना है,
हमने हिम्मत बढ़ा के मजबूत दिल बना लिया, क्योंकि हमको ऐसी बीमारियों से लड़ना है। बीमारी मेरे सपने में आके मुझको कहती है जीत होगी मेरी, अब तो तेरी पक्की हार है। मैं बोला लड़ लेंगे तुझसे, हम तो पूरे तैयार हैं। मैं बोला जीत के दिखाऊंगा तुझसे, क्योंकि दुआ करने वाले आज पीछे खड़े मेरे साथ हैं। माँ मेरी मुझको कहती जो तेरी जिंदगी को रोक जाके उसको पहले देख ले, हारनी है मानी तूने उसको जाके बोल दे। तुझे हराने की जो बात बोल रही तू उसको ही हरा देगा, तू तो ऐसा वैसा नहीं, तू तो लड़का मेरा शेर है। पूरी बाकी जिंदगी ये देख लेगी, माड़ेपन की याद जो निकाल कर ये फेंक देगी। अगर मेरे साथ आप जैसे लोगों का प्यार रहा, जल्दी आने वाली मौत मेरे आगे घुटने की टेक देगी। डियर पवन सागर, तुम्हारे रैप ने हम सबका दिल तो जीत ही लिया है, लेकिन अब कैंसर को जीतने का टाइम आ गया है। मैं और मेरी टीम यूवी कैन तुम्हारे साथ है। हम बहुत प्राउड है जो तुमने हिम्मत दिखाई है, और ये जंग मुश्किल है लेकिन इस जंग को जीता जा सकता है, और हर वक्त में हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट और नेवर गिव अप। तो अपनी यूवी कैन फाउंडेशन की टीम और कुछ दोस्तों के साथ वी डिसाइडेड कि कुछ तो करना पड़ेगा। डिटेल प्लानिंग और डिफरेंट एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करने के बाद वी हैव स्टार्टेड मिशन 1000 बेड्स। ये प्रोजेक्ट 1000 क्रिटिकल केयर बेड्स उन हॉस्पिटल में डालेगा जो देश के सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज में हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये टेम्परेरी फैसिलिटी नहीं बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी 10 से 15% बढ़ा रहे हैं, जो कि आने वाले बहुत सालों तक पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर दे पाएगा। यूवी कैन फाउंडेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और आर्मी हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनर कर रहे हैं, जो हमें बेड्स के लिए जगह देंगे और इस पूरी फैसिलिटी को मैनेज भी करेंगे। हर हॉस्पिटल्स में 50 से 100 नए बेड्स लग रहे हैं। हर एक बेड के साथ 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जाएंगे। 50% ऑफ बेड्स पर बाईपैप की मशीन और 10% बेड्स को हम आईसीयू वेंटिलेटर के साथ इक्विप कर रहे हैं। इसके अलावा हम और भी मेडिकल इक्विपमेंट लगा रहे हैं जो कोविड पेशेंट्स की क्रिटिकल केयर में इस्तेमाल होता है। आई एम प्राउड टू से कि पिछले 10 दिनों में 100 बेड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, और नाउ वी हैव रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर मोर देन 1200 बेड्स फ्रॉम अराउंड द कंट्री। यूवी कैन में हम 24 घंटे इस काम में लगे हुए हैं और ये काम नहीं रुकेगा। सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो, जो भी आए, हम तैयारी में जुटे हैं। We will win this battle only if we stand together and act now. अब आप सबसे मेरी अपील है to all my friends, family and well-wishers, join us and make a difference. Your every contribution counts. ये टाइम है डॉक्टर्स, नर्सेज एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स को जिताने का, इस बीमारी को हराने का। इस लड़ाई में बेड्स की, ऑक्सीजन की, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी ना होए, ये हमारा मिशन है। स्टे सेफ। जय हिंद। हेलो एवरीवन, बहुत बड़ी न्यूज़ है। हमारा यूवी कैन का मिशन 1000 बेड्स कंप्लीट हो चुका है। इट्स अ बिग फेदर इन आवर कैप। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर आवर टीम, फॉर आवर फाउंडेशन, ऑल आवर पार्टनर्स, ऑल आवर स्पॉन्सर्स हु हैव रियली हेल्प्ड अस इन दिस मिशन टू कंप्लीट इट। होपफुली कोविड दोबारा ना आए, हम यही दुआ करेंगे, लेकिन वही बेड्स आगे कैंसर के लिए भी यूज होंगे। सो इट्स अ बिग विन फॉर अस, और आपकी सपोर्ट के बिना ये सब नहीं हो सकता था। सो कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग यूवी कैन कैंसर फाउंडेशन। वी ट्राइंग टू डू सम ग्रेट वर्क फॉर आवर सोसाइटी एंड वी रियली नीड योर हेल्प। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा 1000 बेड मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता था। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मिशन 1000 कंप्लीट हुआ। सच में शुरू में तो मैंने भी नहीं सोचा था कि हम ये कर पाएंगे, बट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट द इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने दिल से हमें सपोर्ट किया। आई थिंक दैट वाज माय लर्निंग इन लाइफ के अपने लिए तो बहुत कर लिया, अब लोगों के लिए कुछ करना है। सो आई थिंक वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे
पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मेरे वतन आबाद रहे तू। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। इसका तो बेटा ले जाइए घर पे, ठीक है? कृपा जिला है। कहाँ गया टिश्यू पेपर? बड़ी क्यूट है। वेरी गुड। కొండల్లో వాలిన సూర్యుడా, పగిలిన కోటలనే వదిలిన మారేడా, గడిసిన కన్నుల్లో మళ్ళీ ఉదయించి కలలో దేవుడిలా కాపరి ఉంటావా, నీ అడుగులకే మడుగులు వస్తే వాళ్ళం, నువ్వంటే ప్రాణం ఇచ్చే వాళ్ళం भेजो जी भाई, फ्रूटी है ना? धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा नहीं इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा। तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको अब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल से कई फासले हैं, बस जितने हैं सपने के अपने, लकीर जब छूटे इन हाथों से बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, क्या गई घरों पे सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में
है छोटा सा, छोटी सी भूखे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, उनका भी दिल होता है, उनका भी दिल रोता है। आओ एक काम करे, ओ आओ एक काम करे, नई शुरुआत करे, जैनों का मान बढ़ाए, जिनको जरूरत हो हमारी उनके हम काम आए। पैसों को छोड़ के अब हम अपनों को गले लगाए, छोड़ अपने पराए, ओ छोड़ अपने पराए, इंसानियत दिखाए, जिनको जरूरत हो हमारी उनके हम काम आए। भैया मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। जैसे आँखों की टिबियां मिली और मिलिया में देखा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता। कहाँ चला रे हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हाथ ला रे, तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आज चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां, बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, के उड़ गई है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मेरा परिंदा। तेरा रहमा रंग बिरंगा, பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. ஹாப்பி பர்த்டே அப்படி சொல்லுங்க. யாருக்கு? சொல்லுங்க. பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. जय हिंद।